Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 9 for Logistic and Supply Chain Management, and here we will discuss Intelligent Information System. The topics to be covered are Introduction, Changing Paradigm of Manufacturing, Materials Requirement Planning, Manufacturing Resource Planning, Enterprise Resource Planning, Distribution Requirement Planning, Distribution Resource Planning, and Supply Chain Planning. Now, first is Introduction. Information is tangible and intangible entity that reduces uncertainty about some state or event. इन्फॉर्मेशन दो टाइप्स की होती है, टैंजिबल भी हो सकती है और इनटैंजिबल भी हो सकती है. टैंजिबल होती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फॉर्म में, और इनटैंजिबल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते. एज एन एग्जाम्पल, कंसिडर अ वेदर फोरकास्ट predicting clear and sunny skies tomorrow. This information reduces our uncertainty about whether an event such as cricket match will be held. Information that a bank has just approved a loan to our firm reduces our uncertainty about whether we shall be in a state of solvency or bankruptcy नेक्स्ट मंथ. तो इन्फॉर्मेशन जो है वो टैंजिबल और इंटेंजिबल एंटिटी होती है जो हमारी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है. जैसे एग्जांपल अभी बताया, वेदर फोरकास्ट की अगर हम बात करें कि उन्होंने अगर ये प्रिडिक्ट किया है कि कल स्काई क्लियर होगा और सनी डे होगा, तो इससे हमारी अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है कि कल क्रिकेट मैच जो होना था वो होगा या नहीं होगा. नेक्स्ट इज चेंजिंग पैराडिगम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. Every segment of manufacturing enterprise has gone through close scrutiny, and as a result, excellent and efficient new technologies emerged and earned their due place in the organization. So, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में सेगमेंट्स होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ नए चेंजेस आए हैं और वो बेटरमेंट के लिए आए हैं. जैसे कि अगर हम कंपेयर करें ओल्ड रूल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और न्यू रूल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग्स को, तो अगर हम ओल्ड रूल्स में देखें तो दे वर प्रोड्यूस टू फॉरकास्ट. हम फॉरकास्टिंग के लिए मटेरियल्स प्रोड्यूस करते थे. दे वर यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड, लो ऑन इंफॉर्मेशन कंटेंट. मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो लो होती थी, उसमें इंफॉर्मेशन कम होता था कंटेंट. देन दे वर करेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक मार्केट निके एंड एक्सपेक्टेड टू हैव अ लार्जर मार्केट लाइफ. तब डिमांड्स इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती थी, तो इसलिए प्रोडक्ट्स की मार्केट लाइफ बड़ी होती थी. They were self-contained. Line personnel shouldn't challenge current practices. The layout the factory by function and always keep people busy and equipment humming. So पहले strategies होती थी कि people को busy रखना चाहिए और equipment humming यानी कि काम चलते रहना चाहिए. Inventory is an asset. They thought that inventory was an asset. लेकिन अब हम सोचते हैं कि inventory is a liability. Traditional performance measures such as labor and machine efficiencies, purchase price variance and overhead absorption rates. So पहले performance हम measure करते थे labor और machine efficiencies पे, और अब measure करते हैं we focus on improvement rates in cost, quality, flexibility and value added activities and customer satisfaction. The quality is expected at the end of line, and large lot sizes are better because we amortize setup and change over times over more units. और अगर हम न्यू रूल्स देखें तो उसमें हम वी प्रोड्यूस टू ऑर्डर. देन दे आर हाईली वेरिएबल एंड कस्टमाइज, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो दिन पे दिन चेंज होती है, जो कस्टमर्स की डिमांड है वो चेंज होती रहती है, तो इसलिए अब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं कस्टमर के हिसाब से, एंड दे आर हाईली वेरिएबल. दे कंटेन हाई इंफॉर्मेशन characterized by multiple market niche, expected to have a shorter market life due to customer demands, open-ended platform for upgrades or information or services. The person closer to problem is the world's best expert, and we use cellular layout nowadays. Make only as such as you need, only when you need. मतलब हम तभी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं तब हमें उनकी ज़रूरत होती है. इन्वेंट्री इज़ कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी, and building quality is throughout entire process. Next is materials requirement planning, that is MRP.
The main purpose of MRP system are to control inventory levels and assign operating priorities for ordered items. MRP का मेन पर्पस होता है कि कैसे हम इन्वेंट्री लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रायोरिटीज़ कैसे सेट कर सकते हैं अपनी ऑर्डर्ड आइटम्स पे. They may briefly be expanded as: first is inventory, that is order the right part, order in the right quantity and order at the right time. सो राइट पार्ट को ऑर्डर करें, राइट क्वांटिटी को ऑर्डर करें और राइट टाइम पे, तो इन्वेंट्री हम अपनी कम कर सकते हैं. प्रायोरिटीज़ होती है ऑर्डर विद द राइट ड्यू डेट एंड कीप द ड्यू डेट वैलिड. द मोटो ऑफ MRP is getting the right materials to the right place at the right time. The operating philosophy of MRP is that materials should be expedited when their unavailability would delay the overall production schedule and de-expedited when a schedule change postpones their need. So एक मटेरियल को हम तब डिलीवर करते हैं जब वो अनअवेलेबल है, जब उसकी ज़रूरत है, एंड डी-एक्सपेडिटेड जब उसका स्केड्यूल पोस्टपोन होता है या चेंज होता है. So there is a master production schedule which states with which end items are needed, जो ये स्टेट करता है कि कौन सी एंड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, इन व्हाट क्वांटिटीज़, ऑन विच स्पेसिफिक डेट्स एंड व्हेन दीज आइटम्स विल बी produced. And the master production schedule has 5 major inputs, and they are production plan, rough cut capacity planning, planning data, inventory status and demand data. So एक master production schedule prepare करते हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं कि हम कैसे अपनी प्रोडक्शन करेंगे, कैसे उसकी स्केड्यूलिंग होगी. तो इसमें मेजर 5 इनपुट्स हम देते हैं. प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन का क्या हमने प्लान सेट किया है, लेआउट क्या तैयार किया है. देन रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग, उसकी कैपेसिटी क्या होगी कि उसको कैसे हमने प्लान किया है, वो इनपुट होगा. देन प्लानिंग डेटा, इन्वेंट्री स्टेटस एंड डिमांड डेटा. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, दैट इज MRP2. MRP is a production planning system that converts an MPS, that is Master Production Schedule, into planned order releases. तो MRP जो होता है, जो अभी हमने पढ़ा था, वो होता है कि कैसे हम एक प्रोडक्शन प्लानिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं एक MPS में, या NPS को एक प्लान्ड ऑर्डर रिलीज में कन्वर्ट कर रहे हैं. लेकिन MRP2 क्या होता है? MRP2 इज़ मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्सेज की प्लानिंग होती है. इट इज़ अ फिलोसफी दैट अटेम्प्ट्स टू इनकॉर्पोरेट द अदर रेलिवेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म इनटू द प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस. कि मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं एक प्लानिंग प्रोसेस में. सो in MRP, the MPS, that is Master Production Schedule, is treated as input information, and in MRP2, the MPS would be considered a part of the system and as such would be considered a decision variable as well. So अगर हम MRP को देखें तो उसमें MPS हम एक इनपुट की तरह कंसिडर करते हैं, लेकिन MRP सेकेंड में अगर हम देखें तो इसमें मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल उसका ही एक पार्ट होता है, सिस्टम का ही पार्ट होता है, और इसको हम एक डिसीजन वेरिएबल की तरह कंसिडर करते हैं. Another important aspect of MRP2 is the incorporation of CRP, that is Capacity Resource Planning. So capacity considerations are not explicitly accounted for in MRP. So MRP में हम capacity considerations नहीं अकाउंट करते, लेकिन MRP2 में करते हैं. तो इसके लिए एक और दूसरा aspect जो होता है वो है Capacity Resource Planning, that is CRP. So MRP2 is a closed loop cycle in which lot sizing and the associated shop floor schedules are compared to capacities and recalculated to meet capacity restrictions. MRP2 एक closed loop cycle होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा साइजिंग यूज़ करते हैं हम, और शॉप फ्लोर के स्केड्यूल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, जो हम कंपेयर करते हैं उसकी कैपेसिटीज़ के साथ, और फिर उसकी कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, उसके साथ रिकैलकुलेट करते हैं. Then Enterprise Resource Planning, that is ERP. The enterprise is a group of people with a common goal, which has certain resources at its disposal to achieve this. Enterprise जो होता है एक people का group होता है कि कहाँ जहाँ पे कुछ particular activities perform होती है resources use करके, ताकि एक common goal को achieve कर सकें.
द ग्रुप हैज़ सम की फंक्शंस टू परफॉर्म इन लाइन विद दी गोल्स. ग्रुप के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हर किसी को एक फंक्शन एलोकेट कर रखा है जो उसको परफॉर्म करना है ताकि कॉमन गोल्स को अचीव कर सके. रिसोर्सेज आर एनीथिंग विच कॉस्ट मनी. Resources include raw material, purchased parts, and produced parts, personal processing machine capacity, material handling capacity, tools, fixtures, NC programs, and such others as needed to produce the end items. Planning is to ensure that nothing goes wrong and also putting necessary functions in place. So planning क्या होता है कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. जो हमारा पूरा प्लान है कैसे हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और कैसे हम नेसेसरी फंक्शंस को एक जगह पे ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं. दैट इज़ प्लानिंग. एंड ERP इज़ द मेथड ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सारे रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं, कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिव वे में ताकि लॉसेस इनकर ना हो. एवरी ऑर्गेनाइजेशन committed to making and selling goods and services has three major objectives: to provide maximum customer service, to minimize inventory carrying cost, and to optimize plant operation. Next is distribution risk requirement planning, that is DRP. Distribution requirement planning is the management process that determines the need of inventory stocking locations and ensures that supply sources will be able to meet the demand. सो डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं. ये भी एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें इन्वेंट्री स्टॉकिंग लोकेशंस के का पता चलता है कि इन्वेंट्री को कहाँ पे स्टॉक करना है, उनकी लोकेशंस क्या होगी और उनकी कितनी ज़रूरत है. एंड इट इंश्योर्स दैट सप्लाई सोर्सेज विल बी एबल टू मीट द डिमांड. This is accomplished in three distinct phases. First phase is DRP receives input from. First is sales forecast by stock keeping unit, customer orders, available inventory for sale, outstanding purchase orders, logistic manufacturing, modes of transport, safety stock policies, normal minimum quantity of product to be purchased. So इन सब जगहों से सबसे पहले DRP input receive करेगी. Then second phase is DRP generates a time phased model of resource requirements to support the logistics strategy. उसके बाद एक टाइम फेस्ड मॉडल जनरेट होगा रिसोर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कहाँ कहाँ पे कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है. सो दीज इंक्लूड विच प्रोडक्ट इज़ नीडेड, हाउ मच एंड वेयर एंड व्हेन इट इज़ नीडेड, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, नीडेड स्पेस, मैन पावर एंड इक्विपमेंट कैपेसिटी, रिक्वायर्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन. And third is DRP compares the required resources to what is currently available at supply sources. सो DRP उसके बाद कंपेयर करता है कि जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है और जो करेंटली अवेलेबल है इन दोनों में कितना डिफरेंस है और कैसे इस डिफरेंस को ओवरकम किया जा सकता है. इट देन रिकमेंड्स व्हाट एक्शंस मस्ट बी टेकन टू एक्सपेडाइट और डिले परचेजेस एंड और प्रोडक्शन, देयर बाय सिंक्रोनाइजिंग सप्लाई एंड डिमांड. एक बार हमें डिफरेंसेस पता चल गए कि रिक्वायर्ड कितने हैं और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं तो उसके बाद फिर जो नीडेड एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं. Next is DRP 2, that is Distribution Resource Planning 2. So अभी हमने पढ़ा था Distribution Requirement Planning, which has been defined as the application of MRP principles to the distribution environment, integrating the special needs of distribution networks of retailers, etc. It is the dynamic model that looks at the time-phased plan of events that affect इन्वेंट्री. सो डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो था उसको हमने डिफाइन किया था कि वो एक MRP की ही एप्लीकेशन थी कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसोर्सेज, उनकी स्पेशल नीड्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं रिटेलर्स के साथ. और वो एक डायनामिक मॉडल था दैट लुक्स एट अ टाइम फेस्ड प्लान. एंड अगर हम DRP 2 को देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग. ये डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग का ही एक्सटेंशन है. DRP second extends DRP to include the planning of key resources in our distribution system.
जो DRP 2 है, ये DRP को ही एक्सटेंड करता है कि कैसे हम की रिसोर्सेज को प्लान करते हैं और उनको इंक्लूड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में, जैसे कि वेयर हाउस स्पेसेस, मैन पावर लेवल्स, ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल फ्लोज. देन नेक्स्ट इज ERP वर्सेस SCM. नाउ सबसे पहले ERP और SCM को कंपेयर करने से पहले हम ERP और SCM के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. ERP is Enterprise Resource Planning, and it is company-wide planning systems which works around core activities of business and has all logical interfaces to achieve seamless flow of information within the supply chain context. सो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? एक कंपनी वाइड प्लानिंग सिस्टम है, क्योंकि अगर नाम से ही पता चल रहा है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, पूरे एंटरप्राइज में कैसे हमें रिसोर्स को प्लान करना है, दैट इज told us from ERP. So it is company wide planning system which works around core activities of business and has all logical interfaces. जो core activities पे work करता है, जो business की हमारी core activities और operations हैं, और इसके logical interfaces होते हैं to achieve seamless flow, यानी कि जिसमें flaws ना हो. seamless flow achieve करने के लिए of information within the supply chain context. Then such systems can optimally plan and manage all the resources of enterprise to run the business with high level of customer services at lower cost and improved productivity. Then SCM, supply chain management. Supply chain management is the logistic of managing the pipeline of goods from contracts with suppliers and receipt of incoming material. Supply chain management होता है, logistics होती है कि कैसे हम अपने goods को अपनी पूरी pipeline में, supply chain में कैसे manage कर रहे हैं, कैसे उसका flow रख रहे हैं कि वो smoothly supply chain में flow करता रहे. So it is managing the pipeline of goods from contracts with suppliers and receipt of incoming material, control of work in progress and finished goods, inventories in the plant to contracting the movement of finished goods through the channels of distribution. सो अगर हम इनको कंपेयर करें तो ERP के की प्रोसेसेस होते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ऑर्डर एंट्री होती है, डिलीवरी स्केड्यूलिंग होती है. देन बिजनेस प्लानिंग, इसमें डिमांड फॉरकास्ट करते हैं, प्रोडक्शन और कैपेसिटी की प्लानिंग होती है एंड डिटेल्ड रूटिंग. देन प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, प्रोडक्शन की कैसे प्लान करना है, इसमें मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल जनरेट करते हैं और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. देन शॉप फ्लोर कंट्रोल, जिसमें ऑर्डर्स की प्रोडक्शन होती है, स्केड्यूलिंग, डिस्पैच और जॉब कॉस्टिंग. एंड देन लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, डिलीवरी मैनेजमेंट एंड परचेजिंग मैनेजमेंट. उसके बाद है SCM के की प्रोसेसेस, कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल और कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेनली होता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल, यानी कि कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप बना के रखनी है. देन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, कि कस्टमर सर्विसेज को कैसे मैनेज करना है. डिमांड मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन एंड रिटर्न्स channel, that is reverse logistics. Then next is supply chain management faces the following key pitfalls. supply chain में कुछ drawbacks भी होते हैं, mainly जो होते हैं no supply chain strategy, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, inadequate definition of customer service को प्रिसाइसली डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है. देन इनएफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनएक्यूरेट डिलीवरी स्टेटस डेटा, इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, सिंपलिस्टिक इन्वेंट्री स्टॉकिंग पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंटरनल कस्टमर्स, पुअर कोऑर्डिनेशन, इनकम्प्लीट एनालिसिस ऑफ शिपमेंट मेथड्स की कम्प्लीटली एनालिसिस नहीं करते, कोऑर्डिनेशन पुअर होती है प्रोसेसेस के बीच में, इंटरनल कस्टमर्स की अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है, और स्टॉकिंग पॉलिसीज़ जो है वो बहुत सिंपल होती है.
Then supply chain planning. Supply chain planning is an integrated suite of constraint based planning tools that provide demand replenishment and manufacturing tools for accurate planning and scheduling of various activities. Supply chain planning होती है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि सारी अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट करके कि कैसे हम प्लानिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो हमें डिमांड रिप्लेनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग टूल्स फॉर एक्यूरेट प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग, प्लानिंग कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं और कैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल कर सकते हैं, दैट इज़ सप्लाई चेन प्लानिंग. This software provides an end-to-end enterprise resource planning solution incorporating the most advanced supply chain planning capabilities available. So ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये एक end-to-end एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सप्लाई चेन प्लानिंग की कैपेबिलिटीज़ जो बहुत एडवांस्ड होती है टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.